Students, today after a very long period of time, we are in our school finally. So we are going to discuss the number one chapter you have in your politics, that is the power sharing. In this power sharing, we have to discuss forms of power sharing. Before discussing this topic, we know that we are living in a democratic country. For a healthy democracy, we need the sharing of power. And we have to discuss the forms of power sharing. We have many forms of power sharing, but today we will discuss only two types. Number one, we have the horizontal distribution of power, and number two, we have the vertical distribution of power. So number one, in this horizontal distribution of power, power is shared among different organs of the government. We know that we have the three organs of the government: legislature, executive, and the judiciary. So in this horizontal distribution of power, power is shared among these organs. That is number one, legislative, executive, and the judiciary. And we know that in India we have the parliamentary form of government. एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के सामने फॉर इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज. जो भी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जो भी एग्जीक्यूटिव इसको एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है, दैट इज जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के सामने क्या होता है? क्या होता है? वेरी गुड, ही इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. एंड नंबर थ्री, वी हैव दिस जुडिशरी. We know that in India we have the independent judiciary. We are discussing the forms of power sharing, and in this forms of power sharing we are discussing the horizontal distribution of power. यहां तक हमने ये समझा कि पावर यहां पे शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में. और हमारे कितने ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के? हमारे तीन ऑर्गन्स है. नंबर वन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. ओके, सो यहां पे जब हम इसकी बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स दिस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, दे आर प्लेस्ड इन दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. different organs of the government, they are placed at the same level, that is legislature, executive and the judiciary. They are placed at the same level and they exercise different powers. लेकिन उनके पास जो पावर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. बट नन ऑफ दीज ऑर्गन्स पॉजेस अनलिमिटेड पावर. इनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है. ना लेजिस्लेचर के पास अनलिमिटेड पावर है, ना एग्जीक्यूटिव के पास अनलिमिटेड पावर है, और ना ही जुडिशरी के पास अनलिमिटेड पावर है. बिकॉज ये डेमोक्रेसी, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो होता है वो किसी एक ऑर्गन में आप नहीं रख सकते. वो किसी एक ऑर्गन में आप नहीं रख सकते. दैट इज व्हाई वी आर शेयरिंग द पावर. सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. There is a system of checks and balances. That means अगर legislature कोई लॉ बनाता है, executive उसको implement करता है. Now the judiciary अपना काम करती है. Judiciary क्या काम करती है? Judiciary check the laws by the process of judicial review. Judicial review के जरिए जो ये सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को क्या करता है? चेक करता है. So we have in India we have the system of checks and balances. We have the system of checks and balances. Okay, so none of these organs possess unlimited power. So democracy में किसी एक आदमी के पास, किसी दो आदमी के पास, तीन आदमी के पास, चार आदमी के पास आप पावर नहीं रख सकते. We have to divide this power in different organs. Okay, we have to divide this power into different organs. That is why we are discussing this horizontal distribution of power. Okay, so यहां तक हमें यह समझ आया कि horizontal distribution of power जो है, इसमें जो है legislature, executive and the judiciary, उनको एक ही लेवल पे रख दिया जाता है. They are placed at the same level because they have to work with each other. Because they have to work with each other. They are interconnected and interrelated with each other. But they possess different powers. They exercise different powers. Understand? So that is this horizontal distribution of power. And number two, we have to discuss in this forms of power sharing, that is the vertical division of power.
That is the vertical division of power. In this vertical division of power, power is shared among different levels of the government. We have many levels of the government in India. Power is shared among them. That is, we have the central level, we have the state level, and we have the local level. So in these levels the power is shared. इन लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे. दे आर नॉट प्लेस्ड एट द सेम लेवल. और इस डिवीजन को हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर. India is a federal country. We are living in a federal country, and in a federal country, power is shared among central and the various constituent units of the country. Power is divided into the states. यहाँ पे पावर को शेयर किया जाता है. इन लेवल्स में पावर को ट्रांसफर किया जाता है. यहां पे सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल तक और स्टेट लेवल से लोकल लेवल तक. और लोकल लेवल में फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पंचायती राज सिस्टम. ये किसका ड्रीम था पंचायत राज सिस्टम इंडिया में लागू करना? वेरी गुड. सो यहां पे हमने ये समझा कि यहां पे एग्जीक्यूटिव जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके सामने? लेजिस्लेचर के सामने. बट इन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज बोथ पोजेस सेपरेट पावर्स. यहां पे सेंट्रल लेवल में जो लिस्ट होता है उनके पास कौन सा लिस्ट होता है? यूनियन लिस्ट. और यहां पे स्टेट लेवल के पास कौन सा लिस्ट होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास. दैट इज यूनियन जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हम कहते हैं. वो लॉ बनाती है किसके ऊपर? ऑफ द किन सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है? विच आर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस. That is banking, currency, communication, foreign affairs. We need one currency in one country. अगर आप दिल्ली में जाओगे तो वहां पे कोई अलग करेंसी होगी, पंजाब में जाओगे तो वहां पे कोई अलग करेंसी होगी. Okay, so we need uniform policy. We need uniform policy. That is, I was saying that central level जो लॉ बनाता है वो किस में आता है? यूनियन लिस्ट में. और यूनियन लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, कम्युनिकेशन आती है, बैंकिंग आता है, करेंसी आता है, एटसेट्रा. बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर दीज सब्जेक्ट्स. जैसे मैंने आपको समझाया करेंसी के बारे में, कश्मीर में अलग करेंसी होगी, वहां पे कोई अलग करेंसी होगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा. यहां पे स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको समझा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पे आंसरेबल नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका अपना एक लिस्ट होता है. ओके, वो अपने लिस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स में वो लॉ बना सकती है. वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने. वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि उसके पास अपना लिस्ट होता है, उसके पास अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, पुलिस, ट्रेड, इरिगेशन एटसेट्रा, उसमें वो लॉ बना सकती है. एंड नंबर 3 वी हैव दिस, दैट इज द कंकरेंट लिस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंकरेंट लिस्ट? हमने पढ़ा है कंकरेंट लिस्ट. बोथ कैन मेक लॉज. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो मेक लॉ ऑन दिस एंड द स्टेट. मगर अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो प्रिवेल किसका करेगा? वेरी गुड. सो यहां पे हमने यही समझा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कि यहां पे पावर को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमने समझा, और कौन सा समझा? वर्टिकल डिवीजन ऑफ. तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में आपने क्या समझा? What? Very good. That is, we have the 3 levels of the government. Number 1, legislature, executive, and the in India we have the parliamentary type of government, and in this parliamentary type of government, executive is responsible before the legislature. Would not have the presidential form of. What is the difference between parliamentary form of government and the presidential form of government? हाँ बोलो. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल यूएसए की हम अगर एग्जांपल लेंगे, वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होता है स्टूडेंट्स, वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के सामने. ओके, लेकिन यहां पे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है. उसको जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेचर के सामने. लेजिस्लेचर मीन्स दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज.
ओके, तो यहां पे आपने क्या समझा? वी नन ऑफ दीज ऑर्गन्स पोजेस अनलिमिटेड पावर्स बट दे कैन चेक ईच अदर. ओके, सो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में आपने क्या समझा? लेवल ज्यादा, that means they are not placed at the same, they are placed at the different central level, state level, local level. Okay, and the state level and this state government is not answerable before the central government, because state government possesses its own powers. Understand? Yes sir. Thank you.